جماعت اسلامی سراج الحق جیسے عام آدمی کو پارٹی کا امیر بنا دیتی ہے. جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب جیسے مڈل کلاس آدمی کو پارٹی کا امیر بنا دیتی ہے. الیکشن کے ذریعے لوگ بدلتے ہیں. اس میں جمہوریت ہونی چاہیے پارٹی میں, ایک عام آدمی کو اوپر آنا چاہیے, مڈل کلاس نوجوان کو, بندے کو آگے آنا چاہیے. تو ساری باتیں جماعت اسلامی میں موجود ہیں, تو ہمیں جماعت اسلامی کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے مجھے ان کی پیٹرنیج, اگر مجھے کبھی کوئی کہے کہ جی ہمیں یہ ہیلپ چاہیے, میں اس کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گا, کیونکہ میں خود کو نہ کارکن بنا رہا ہوں اس پارٹی کا, نہ عہدیدار بنا رہا ہوں, نہ اس کو کوئی فائدہ اٹھا رہا ہوں. جمہوریت کے ذریعے اپنے فیصلے کیجیے, طلبہ تنظیموں کو بحال کیجیے, بلدیاتی نظام اس طرح سے دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں, ان نظام کو لے کر آ جائیے. میرا کام ہے یہاں تک. پہلی پرابلم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن سر یہ مت کیجیے کہ آپ مکمل طور پر ان لوگوں کو بری و ذمہ قرار دے دیں جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بار بار بیٹھ کر آتے ہیں. سر یہ قسمیں اس لیے کھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے بدقسمتی سے کہ اس ملک کے پاپولر ترین لیڈر کی بہت ہی قابل عزت اور با وفا بہن پر بھی اسی پارٹی کے سٹنگ چیف منسٹر نے یہ الزام لگایا ہوا ہے کہ وہ ٹاؤٹ ہیں. وہاں یہ مجبوری بنا دی گئی ہے کہ آپ وضاحت کریں اور قسم اٹھانا پڑے آپ کو کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلے سر آپ نے جو یہ دیا ہے نیریٹو, یہ بہت اچھا ہے. بات نظر میں جماعت اسلامی پریکٹس کر رہی ہے, کیا ہی کر لیا, بہت تقریباً پروسیس ان کا یہ جماعت. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. سب سے اچھی دیکھیں, یہ بڑے بہت شاندار سوال. جماعت اسلامی یعنی ہمیں اگر کہتے ہیں کہ بھائی جمہوریت ہونی چاہیے پارٹی میں, ایک عام آدمی کو اوپر آنا چاہیے, مڈل کلاس نوجوان کو, بندے کو آگے آنا چاہیے, تو ساری باتیں جماعت اسلامی میں موجود ہیں. بات ٹھیک ہے. جماعت اسلامی سراج الحق جیسے عام آدمی کو پارٹی کا امیر بنا دیتی ہے. جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب جیسے مڈل کلاس آدمی کو پارٹی کا امیر بنا دیتی ہے. الیکشن کے ذریعے لوگ بدلتے ہیں, اس میں مشاورت کے ذریعے فیصلے ہوتے ہیں. پھر تو ہم سارے اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ یہ بات ٹھیک ہے تو ہمیں جماعت اسلامی کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, میں اسے بھی روکتا نہیں ہوں. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں, جماعت اسلامی کا ایک چھوٹا سا چیلنج ہے, اور وہ چیلنج یہ ہے کہ وہ مذہب کے ایک اسپیسیفک مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. یعنی ایک نظریہ جو مولانا مودودی صاحب کا ہے, وہ برا ہے یا اچھا ہے اس پر بحث نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ ایک مکتبہ فکر ہے, اس میں باقی شیعہ, سنی, بریلوی, اہل حدیث, دیوبندی, کرسچن, ہندو, وہ اس نظریے سے ضروری نہیں کہ اتفاق کرتے ہوں. تو چونکہ وہ ایک اسپیسیفک تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے, وہ اس کی ایک بنیادی ہرڈل ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک وہ سینٹرلائزڈ پارٹی یا پولیٹیکل فورس نہیں بن سکتی. اور اس کے باوجود انہوں نے کے پی کے میں بھی گورنمنٹ کی, انہوں نے کراچی کی میئرشپ بھی اور بہت سارا اچیومنٹس کی. تو اگر کوئی ایسی فورس اسی بنیاد پر بن جائے گی, اسی پیرامیٹر کے اوپر, کہ جس میں ہر شخص, ہر مکتبہ فکر کا, ہر شعبے کا, ہر طبقے کا, ہر نظریے کا شامل ہو سکتا ہوگا, وہ تو شاید اس میں بھی انہوں نے گنجائش رکھی ہوئی ہے. لیکن اگین چونکہ ایک مکتبہ فکر ہے, اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. دوسرا, شاید ان کی بنیادی اور پہلی جو ترجیح ہے وہ الیکٹورل پالیٹکس نہیں ہے, اس کے اندر ایک تربیت کا نظام ہے, پھر ظاہر دین کی خدمت کے حوالے سے, وچ از گڈ. اگین اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہم کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کو ایک ہارڈ کور الیکٹورل پالیٹکس کرنے والی سینٹرلائزڈ پولیٹیکل فورس کی ضرورت ہوگی, جس میں سارے لوگ ہوں, جس میں ڈیموکریسی ہو. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ ایک جیسی جماعتیں ہوں. جن دنیا میں ہوتا, یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ ایک ہی جماعت بنائے اور بس پھر وہی رہے. میں تو چاہوں گا کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس جماعت کا کوئی عہدہ نہیں لوں گا, جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی بنیاد پر کوئی عہدہ, تو ممکن ہے کوئی اور, یعنی کوئی ایک لیفٹسٹ پورا فورس جو ہے وہ پارٹی بنائے, کوئی ایک رائٹسٹ فورس پوری پارٹی بنائے, کوئی ایک سینٹر کی فورس پوری پارٹی, 3-4 آپشنز ہوں لوگوں کے پاس. جمہوریت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک سے زائد آپشنز ہوں, لیکن آپشنز ڈیموکریٹک آپشنز ہوں, ڈکٹیٹوریل آپشنز نہ ہوں کہ ایک ڈکٹیٹر, دوسرا ڈکٹیٹر یا تیسرا ڈکٹیٹر. ان بادشاہوں میں سے کس کو چننا ہے, ان جمہوری جماعتوں کے نمائندگان میں سے کس کو لے کر آنا ہے, یہ فیصلہ ہونا چاہیے. آپ کی بات ساری گفتگو کے دوران ایک چیز میں ابھی ہے کہ جماعت اسلامی بھی 21, 22, 23 نومبر کو تحریک شروع کرنے جا رہی ہے, بدل دو نظام کو. اقرار الحسن بھی بدل دو نظام کی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب دونوں گفتگو اقرار الحسن کی بھی اب شروع ہو رہی ہے, جماعت اسلامی کی بھی. اب کیا کہیں یہ جماعت کافی عرصے سے بات چل رہی ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک پولیٹیکل ونگ علیحدہ ہونا چاہیے, کہیں اقرار الحسن اور جماعت اسلامی مل کے کوئی تحریک شروع کریں. اور دوسری آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو امیدوار نہیں ہوں گا, فلاں نہیں ہوگا. ایسا ہی جماعت اسلامی میں کوئی امیدوار نہیں ہوگا, کوئی کچھ نہیں ہوگا, نمبر 1. اس لیے مجھے تھوڑی شک کی صورت. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بالکل ٹھیک ہے, جماعت کی میں تعریف بھی کی, جماعت کا جو ایک سسٹم ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس بنیاد پر جو میں نے آپ سے نقطہ عرض کیا کہ چونکہ ایک اسپیسیفک تھاٹ ہے, تو ایک سینٹرلائزڈ, میں جس خیال کی بات کر رہا ہوں اس کا ایک بنیادی فرق ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ایک مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, اور یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ایک سینٹرلائزڈ پارٹی ہونی چاہیے. یہ کہیں ایک کافی عرصے سے بحث چل رہی تھی کہ مخصوص مکتبہ فکر سے نکل کے جماعت اسلامی کی پولیٹیکل ونگ علیحدہ ہونی چاہیے, جیسے ترکیہ میں ہے یا اس طرح کا. تو کہیں اس طرح کی آپ نہیں, ہماری آپس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, لیکن میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ اچھی بات ہے کہ ان کا بھی ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل ونگ آ جائے,
नौजवान भी कोई इस तरह की एक पार्टी बनाए, और इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टियां बने इसी तर्ज पर। हो सकता है मुझे उनकी पैटर्नेज, अगर मुझे कभी कोई कहे कि जी हमें ये हेल्प चाहिए, तो मैं उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं खुद को ना कारकुन बना रहा हूँ इस पार्टी का, ना ओहदेदार बना रहा हूँ, ना इससे कोई फ़ायदा उठा रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि एक से ज़ायद पॉलिटिकल पार्टियाँ हों इस तरह की, जिनमें डेमोक्रेसी हो और वो आपस में कम्पीट करें। यही डेमोक्रेसी है, यही जमहूरियत। आपने भी गुफ्तगू के दौरान ही कहा इनकी जमात इस्लामी के सवाल पे कि वो एक मजहबी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, तो क्या आप इसकी गारंटी देते हैं कि लाहौर का युवानाबाद से कोई आके वज़ीर आज़म बनेगा, जबकि आपके आइन में ये है कि वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है? आखिरी सवाल कि क्या वजह है कि आपको इस कदर शद व मद और इसके साथ आप कस्में उठा के, कभी रसूल का वास्ता, कभी खुदा का वास्ता, सिर्फ इस एक चीज़ के लिए कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा, क्या इसको सिर्फ अपने अमल के ज़रिए प्रैक्टिकली लोगों को दिखा के आप नहीं कर सकते? यहीं से आगाज़ कर लेते हैं कि मुझे कस्में खाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। ये तो ऐसा है कि क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए इंसान की, जो बात कह रहा है उसको लोग माने। सर, ये कस्में इसलिए खाने की ज़रूरत पेश आ रही है बदकिस्मती से कि इस मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर की बहुत ही काबिल इज़्ज़त और बावफा बहन पर भी उसी पार्टी के सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने ये इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि वो टाउट हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस से राब्ते में है। उस पार्टी के अंदर भी हर आदमी दूसरे को टाउट कह रहा है और दूसरे को अस्करीगिरी और टाउटगिरी के इल्ज़ाम। तो एक ऐसे माहौल में जहां इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान नहीं बची टाउट होने के इल्ज़ाम से, वहां ये मजबूरी बना दी गई है कि आप वजाहत करें और कसम उठाना पड़े आपको कि भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इन लोगों से। एक ऐसा माहौल इन बदबख्तों ने क्रिएट कर दिया है कि जहां अलीमा खान जैसी बाइज्जत औरत बेचारी जो है उस पर भी आपने इल्ज़ाम लगाया, और आम आदमी ने नहीं इल्ज़ाम लगाया, उस पार्टी के सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने इल्ज़ाम लगाया, और वह भी उस पार्टी का हिस्सा है। तो उस पार्टी ने एक माहौल बना दिया कि जो आपसे सवाल करे, जो आपके इख्तिलाफ में कोई बात करे या कोई नई बात करे, आप उस पर सीधा सीधा टाउट का टैग लगा दें। सो दैट इज़ वाई जब अलीमा खान बेचारी महफूज नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर वह सवाल उठाए जा रहे हैं, तो मेरी क्या ही हैसियत होगी, खातून बाइज्जत, काबिल कदर, काबिल एहतराम खातून, तो मजबूरी है कि आपने ये वजाहत देनी है आपको अल्टीमेटली। दूसरी, देखिए, ये हम बहस जितनी करते जाएंगे ना कि क्या होगा, कैसे करेंगे, यूहन्नाबाद का आदमी आएगा या नहीं आएगा, ये पार्टी सेंटर की पार्टी होगी, लेफ्ट की पार्टी होगी, मेरा बुनियादी तौर पर जो आपने सवाल, उसका जवाब भी है कि मैं सहाफ़ी हूँ या सियासतदान, इसको क्लियर कर लीजिए कि मैं बतौर एक सहाफ़ी, मैं बतौर एक लिखारी, जिस तरह ज़फ़र अली ख़ान थे, जिस तरह सर सैयद अहमद ख़ान थे, एक फ़िक्री तहरीक का इहया कर रहा हूँ, एक फ़िक्री तहरीक का आगाज़ कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि सिस्टम में ये तब्दीलियाँ होनी चाहिए, और मेरा किरदार बस इस हद तक महदूद है। मैं आपसे हलफन कह रहा हूँ कि मैं कोई ओहदा नहीं लेता, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं होगा फैसले करने का, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास किसी तरह की कोई माली मनफात या फ़ायदा किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का, सरकार का या हुकूमत का नहीं होगा। इसके बावजूद भी अगर आप बज़िद हैं कि मैं सियासत कर रहा हूँ या सियासतदान हूँ, तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं अपना सहाफ़ती काम कर रहा हूँ कि मुझे लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहिए कि जमहूरियत के ज़रिए अपने फ़ैसले कीजिए, तलबा तंजीमों को बहाल कीजिए, बल्दियाती निज़ाम इस तरह से दुनिया भर में काम कर रहे हैं, उन निज़ाम को लेकर आ जाइए। मेरा काम है यहाँ तक। इस तहरीक के नतीजे में मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट हो जाए, और वो पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी हो, उसमें मेरा कोई किरदार ना हो। यानी आप तो कहते हैं ना कि जी शायद बानी बन के या अल्ताफ़ हुसैन और बहुत सारी मिसालें कि फिर आप इन्फ्लुएंस करेंगे, तो सर वो तो डिक्टेटरशिप थी। एक आदमी को उठाते थे फुटपाथ से, कहते थे चलो अभी कल तुम वजीर का हलफ उठाओगे, फिर कहते थे आपकी वेस्ट कोट बहुत अच्छी है, चलो तुम कल MNA MP बन जाओ। मैं तो उसी डिक्टेटोरियल जो माइंड सेट है उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ कि पार्टी में इलेक्शन से ये फैसले करें, आप पार्टी में मुशावरत से आप ये फैसले करें। तो जब पार्टी में इलेक्शन का यूनियन काउंसिल से एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो आपके और मेरी इन्फ्लुएंस की क्या औकात रहेगी, उसमें किधर से अपना बंदा घुसाएंगे हम। वो आदमी जो यूनियन काउंसिल से चलेगा वही पार्टी का चेयरमैन बन सकेगा, और ये भी नहीं कि 700 साल के लिए बन जाएगा, एक टर्म के लिए मुंतखब होगा, उसके बाद नया बंदा आ जाएगा, तो कितना इन्फ्लुएंस कर सकेंगे आप उसको। तो इस इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए ही मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक ऐसी पार्टी बना लें, और मैं बतौर सहाफ़ी ये काम कर रहा हूँ। जब मैं सियासत में ना इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ना पार्टी का कोई ओहदा रख रहा हूँ, ना उसका उम्मीदवार हूँ, तो मेरा ये ख्याल है इस बात को बहस को खत्म करना चाहिए। हमारे नौजवानों को आगे आने दे रही, जो एहतजाज नहीं होने दे रही, जो लोगों को कुचल रहे हैं, अकरारुल हसन उस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुल के बात क्यों नहीं करता, क्यों नहीं उस तरह तहरीक चलाते कि सियासी जमातों के बजाय हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तहरीक चलाएं, जो क्रक्स है, जो जड़ है, उस जड़ को मिटाया जा सके। अभी भी आप कि हम अगर इंटरव्यूज़ देखें, ट्वीट्स देखें, तो आप जनरल बाजवा तक तो बात करते हैं कि नवाज शरीफ को कौन लाया, जनरल बाजवा कौन लाया, सबको कौन लाया, लेकिन अभी जो मौजूदा क़यादत है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, जब उसका नाम आता है तो फ़ौरन से आप खामोश हो जाते हैं, आप नाम नहीं दे पाते। अगर इकरारुल हसन मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो अवाम क्या समझे कि इकरारुल हसन कितने बहादुर हैं, हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं कि नौजवानों
नौजवानों को आगे जी लाएगा? जी, देखिए मेरी बहादुरी पे तो बहस ही नहीं है। मैंने आपसे कहा मेरे अच्छे होने ना अच्छे होने पर बहादुरी पर बहस इररेलेवेंट बात है। अब आपके इस मसले पर आ जाते हैं। मेरी सारी गुफ्तगू में मैंने ये कहा कि पहली प्रॉब्लम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन सर ये मत कीजिए कि आप मुकम्मल तौर पर इन लोगों को बर्रियो ज़िम्मा करार दे दें जो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बार बार बैठ कर आते हैं, हत्ता कि जब मार्शल लगता है तब भी ये लोग मिठाइयाँ बांटते हैं और अपना कंधा पेश करते हैं कि जनाब हम हाजिर हैं। तो ये कुल्लियतन आप ये नहीं कह सकते कि ये चूचियाँ हैं और ये जो है ना रोटी को चोची कहते थे और ये दूध पीते हैं फीडर वाले बच्चे हैं, कि जब ये कहते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था एस्टेब्लिशमेंट इतनी बुरी है, हमें तो नहीं पता था कि जर्नैल जो है वो, हमें तो लगता था सारे पाकिस्तान से प्यार करते हैं। तो भाई आपको पता क्या था? फिर आपको लीडर होने का कोई हक नहीं है। तो दरख्वास्त सिर्फ ये है कि ये मत करें कि सिर्फ और सिर्फ। अब प्रॉब्लम ये है, मैंने अब भी कहा, मैं हमेशा कहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन भाई उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। मैं इसकी एक मिसाल छोटी सी आपको देता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपके घर में कोई वारदात हो जाए और आपको ये पता चले कि कोई गैर मुतल्लिका अफराद जो घर के बाहर से आपके घर में आए थे, उन्हें रास्ता भी दिखाया था आपके भाई ने, और उनको ये भी बताया था कि डॉलर्स और वो कहाँ पड़े हुए हैं और कैश कहाँ पड़ा हुआ है, और ये भी था कि जो भी वो हासिल करेंगे उसमें वो आधा आधा काम करेंगे। अब आपको ये पता लगे कि काम आपके भाई ने करवाया, बाहर से लोग आए थे। मुझे दयानतदारी से बताएं कि पहला गिरेबान आप उन लोगों का पकड़ेंगे या आप अपने भाई का गिरेबान पहले पकड़ेंगे? जो बार बार खींच के लेकर आते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि जनाब आप चोरी कीजिए, हम आपके साथ मिलेंगे और इस चोरी में आधा हिस्सा हमारा होगा। आप उनको बिल्कुल इनकलाबी मान लेते हैं एक वक्त में जाके, उनके के साथ जो सिर्फ इसलिए कि अपने इख्तिदार की ख्वाहिश में वो आके दो नारे लगाता है, चाहे वो वोट को इज्जत दो का नारा हो या चाहे हकीकी आज़ादी को नारा हो। आप कहते हैं कि जनाब इनके सारे गुनाह धुल गए हैं। और भाई इनके गुनाहों को रोकेंगे एक बार करने पर या 4 बार करने पर कहीं आपको बंद लगाना पड़ेगा। हम नौजवान की बात करते हैं, हम कहते हैं आम आदमी आगे आए, हम कहते हैं रेडी वाले की बेटी पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बननी चाहिए, हम कहते हैं मजदूर की औलाद या टीचर का बेटा पाकिस्तान की वज़ीर उज़्मा की कुर्सी पर बैठना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए। तो नौजवानों को आप कहते हैं पहले एस्टेब्लिशमेंट को हल करो। और भाई ये नौजवान लेकर आए एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की सियासत में, बार बार पाकिस्तान की सियासत में ये बदबख्त लाते रहे, बार बार पाकिस्तान में खींच के उनको अपने इख्तिदार के लिए मार्शल लॉ पर मिठाइयां ये तकसीम करते रहे हैं, अपने हक में इलेक्शंस ये रिग करवाते रहे हैं, अपने हक में लोगों को लाने के लिए बार बार अलल ऐलान कहते हैं कि एजेंसियां लेकर आती थी, हमें कहती थी कि वोट दें आप, और हम एजेंसियों के लाए हुए लोगों की बुनियाद पर बिल पास करवाते थे। अलल ऐलान सिद्दीक जान साहब बताते हैं कि साउथ पंजाब के किन लोगों को एजेंसियों ने ले जाकर जो है तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया। तो खुदा का वास्ता है इनको इतना मासूम और इनकलाबी बनाकर मत पेश करें। इसको ठीक करेंगे तो बार बार बाहर से लोगों को खींच कर लाने वाला मामला आप हल करेंगे, और अल्टीमेटली सारा बर्डन नौजवानों पर मत डालें कि जब किसी वडेरे ने, नवाज शरीफ ने, जरदारी ने, किसी एचएसएन कॉलेज से पढ़ने वाले ने वज़ीर आज़म बनना था तब तो सब कुछ ठीक था। अब आप कह रहे हैं नौजवान तब पहले आए कि पहले वो एस्टेब्लिशमेंट को ठीक करें, पहले अदालतों को ठीक करें, पहले जर्नैलों को घर भेजें, फिर नौजवान आए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नौजवान आएंगे, अल्टीमेटली इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।